بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا نماز کے بارے میں۔ نماز گناہوں کو مٹاتی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر کوئی نہر ہو جس میں وہ ہر دن 5 بار غسل کرتا ہو، تو بتاؤ اس کے جسم پر کچھ بھی میل کچیل باقی رہ سکتا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ نہیں، اس کے جسم پر ذرا بھی میل کچیل نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال 5 وقت کی نمازوں کا ہے، اللہ ان نمازوں کے ذریعے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ بہرحال اس حدیث کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حقیقت واضح کی ہے کہ نمازیں انسان کے گناہوں کے معاف کیے جانے کا ذریعہ بنتی ہیں، اور اس بات کو ایک مخصوص مثال کے ذریعے سمجھایا۔ نماز سے انسان کے دل میں شکر کی وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کے نتیجے میں وہ خدا کی اطاعت کی راہ میں برابر بڑھتا جاتا ہے، اور نافرمانیوں سے اس کا ذہن دور ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس سے کبھی کوئی غلطی ہوتی بھی ہے تو جان بوجھ کر نہیں ہوتی، اور فوراً وہ اپنے رب کے سامنے گر پڑتا ہے اور رو کر معافی مانگتا ہے۔ کامل نماز باعث مغفرت ہے، جیسا کہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ 5 نمازیں ہیں جنہیں اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے، تو جس شخص نے بہتر طریقے پر وضو کیا اور ان نمازوں کے مقررہ وقتوں میں انہیں ادا کیا، اور رکوع و سجود ٹھیک سے کیے، اور اس کا دل اللہ کے سامنے نمازوں میں جھکا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت اپنے ذمے لے لی، اور جس نے ایسا نہیں کیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ نہیں ہے، اگر چاہے گا تو اس کے بخش دے گا اور چاہے گا تو اس کو عذاب دے گا۔ بہرحال منافق نماز عصر تاخیر سے پڑھتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ منافق کی نماز ہے کہ وہ بھیٹا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب اس میں زردی آ جاتی ہے اور مشرکین کی سورج پوجا کا وقت آ جاتا ہے، تب یہ اٹھتا ہے اور جلدی جلدی 4 رکعت مار لیتا ہے، ایسے جیسے کہ مرغی زمین پر چونچ مارتی ہے اور پھر اٹھا لیتی ہے۔ یہ شخص اللہ کو اپنی نماز میں ذرا بھی یاد نہیں کرتا۔ بہرحال اس حدیث کے ذریعے مومن اور منافق کی نماز کا فرق واضح کیا گیا ہے۔ منافق اپنی نماز وقت پر نہیں پڑھتا اور رکوع و سجدہ ٹھیک سے نہیں کرتا، اور اس کا دل خدا کے حضور نہیں ہوتا۔ ویسے تو ہر نماز اہم ہے، لیکن فجر اور عصر کی اہمیت اور فضیلت زیادہ ہے۔ عصر کا وقت غفلت کا وقت ہوتا ہے، عصر کا وقت غفلت کا وقت ہوتا ہے۔ لوگ اپنے کاروبار میں لگے ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ رات آنے سے پہلے خرید و فروخت کر لیں اور اپنے پھیلے ہوئے کاموں کو سمیٹ لیں۔ اس لیے اگر مومن کا ذہن بیدار نہ ہو تو عصر کی نماز خطرے میں پڑ سکتی ہے، اور صبح کی نماز کی اہمیت اس لیے ہے کہ نیند کا وقت ہوتا ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ رات کے آخری حصے کی نیند
बड़ी गहरी और मीठी होती है। अगर इंसान के दिल में ईमान जिंदा ना हो तो अपनी महबूब नींद को छोड़कर खुदा की याद के लिए नहीं उठ सकता। बहरहाल फजर और असर की नमाजों में मुहाफिज फरिश्तों का तबादला होता है, जैसा कि सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात और दिन के फरिश्ते जो ज़मीन के इंतज़ाम पर माहमूर हैं वो अपनी ड्यूटी बदलते हैं और फजर और असर की नमाज में इकट्ठा होते हैं। फिर जो फरिश्ते तुम्हारे अंदर रहे हैं वो अपने रब के हुजूर जाते हैं तो वो उनसे पूछता है कि तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा? तो वो अर्ज करते हैं कि जब हम उनके पास पहुंचे थे तो उन्हें नमाज पढ़ते पाया था, और जब हमने उसे छोड़ा है तो नमाज पढ़ते हुए छोड़ा है। बहरहाल ये हदीस फजर और असर की अहमियत को खूब वाज़े करती है। फजर की नमाज में रात के फरिश्ते शिरकत करते हैं और वो फरिश्ते भी जिन्हें दिन में अपना काम करना है। इसी तरह असर की नमाज में भी दोनों किस्म के फरिश्ते मोमिनीन के साथ जमात में शरीक होते हैं। मोमिन की इससे बड़ी खुश नसीबी और क्या होगी कि उनको फरिश्तों का साथ नसीब हो। जो शख्स अपनी नमाज की हिफाजत करेगा और उसकी देखभाल करता रहेगा तो वो अपने पूरे दीन की हिफाजत करेगा, और जो नमाज को ज़ाया कर देगा तो वो और सारी चीज़ों को बदरजा औला बर्बाद कर देने वाला साबित होगा। दिखावे की नमाज शिरक है, जैसा कि मुस्नद अहमद की हदीस है। शिद्दात इब्ने औस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है कि जिसने दिखावे की नमाज पढ़ी तो उसने शिरक किया, और जिसने दिखावे का रोज़ा रखा तो उसने शिरक किया, और जिसने दिखावे का सदका किया तो उसने शिरक किया। बहरहाल इस इरशाद के ज़रिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात बताना चाहते हैं कि जो भी नेकी का काम किया जाए खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए किया जाए। नीयत ये हो कि ये मेरे मालिक का हुक्म है और मुझे इसकी खुशनुदी की फिक्र है। दूसरों की निगाह में पारसा बनने और दूसरों को खुश करने के लिए जो नेकी का काम किया जाएगा उसकी कोई कीमत नहीं। कीमत तो सिर्फ उस नेकी की है जो खुदा की खुशनुदी हासिल करने की नीयत से की गई हो। नमाज बा जमात इनफरादी नमाज से बदर जहां अफजल है, जैसा कि सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों की जमात से अलग थलग अकेले नमाज पढ़ने वाले की नमाज के मुकाबले में जमात की नमाज 27 दर्जा ज़्यादा अफजल रखती है। बहरहाल जमात की नमाज में हर तरह के मुसलमान शरीक होते हैं, अमीर भी, गरीब भी, खुश पोशाक भी और फटे पुराने कपड़े पहनने वाले भी। तो जिन लोगों के अंदर बड़ाई का गुरूर होता है और मालदारी के नशे में बदमस्त होते हैं, इस बात को पसंद नहीं करते कि उनके साथ कोई और खड़ा हो, इसलिए वो नमाज अपने घरों में पढ़ते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ज़हनी बीमारी का इलाज ये बताया कि जमात के साथ नमाज पढ़ो, अपने कमरे में या मस्जिद में तन्हा नमाज ना पढ़ो। फिर ये बात भी है कि जमात के साथ नमाज पढ़ने में शैतानी वसवसा कम पैदा होते हैं और आदमी का खुदा से ताल्लुक
मजबूत होता है। इसी वजह से नमाज बा जमात का दर्जा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक 27 गुना बड़ा है। मोमिन और नमाज बा जमात का एहतमाम, जैसा कि सही मुस्लिम की हदीस है, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हमारा हाल ये था कि हम में से कोई नमाज बा जमात से पीछे नहीं रहता था, सिवाय उस शख्स के जो मुनाफिक था और उसका निफाक मालूम था, और सिवाय मरीज के, बल्कि उस ज़माने के लोगों का हाल ये था कि मरीज में मुब्तला हो जाते फिर भी 2 आदमियों के सहारे मस्जिद और जमात में शिरकत करते। नेज़ अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इसी सिलसिले में फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सुन्नत अलहदा सिखाई। सुन्नत अलहदा उन सुन्नतों को कहते हैं जिनको कानूनी हैसियत हासिल है और वो उम्मत के करने के लिए बताई गई हैं। और सुन्नत हुदा में से नमाज भी है जो उस मस्जिद में पढ़ी जाए जिसमें अजान होती है। और एक दूसरी रिवायत में है कि उन्होंने फरमाया, जिस शख्स को ये बात पसंद हो कि वो फर्मा बरदार बंदे की हैसियत से कल क़यामत में अल्लाह से मिले, तो उसको उन 5 नमाजों की देखभाल करनी चाहिए और उन्हें मस्जिद में जमात के साथ अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुन्नन हदा की तालीम दी है और ये नमाजें सुन्नन हदा में से हैं। और अगर तुम अपने घरों में नमाज पढ़ोगे जैसे कि ये मुनाफिक लोग अपने घरों में नमाज पढ़ते हैं, तो तुम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ दोगे। और अगर तुमने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ा तो सिरातो मुस्तकीम को गुम कर दोगे। इमाम और मुअज्जिन की जिम्मेदारी, जैसा कि अबू दाऊद की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम जिम्मेदार है और मुअज्जिन अमानतदार। ए अल्लाह, इमामत करने वालों को नेक बना और ए अल्लाह, अजान देने वालों की मगफिरत फरमा। बहरहाल इमाम के जामिन होने का मतलब ये है कि वो लोगों की नमाज का जिम्मेदार है। अगर वो नेक और साले ना हो तो सबकी नमाज खराब कर देगा। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते हैं कि ए अल्लाह, इमामों को नेक व साले बना। और मुअज्जिन के अमानतदार होने के मायने ये हैं कि लोगों ने अपनी नमाज के मामले को इसके हवाले कर दिया है। उसका फ़र्ज़ ये है कि वक्त पर अजान दे, ताकि अजान सुनकर लोग तैयारी करें और इत्मीनान से जमात में शरीक हो सकें। अगर वक्त पर अजान ना हो तो ऐन मुमकिन है कि बहुत से लोग जमात से महरूम रह जाएं या 2 या 1 रकात छूट जाए। ये हदीस एक तरफ तो इमामों और मुअज्जिनों को ये हिदायत देती है कि वो अपनी जिम्मेदारी महसूस करें, दूसरी तरफ उम्मत को बताया जा रहा है कि इमामत के लिए साले और परहेजगार आदमी का इंतखाब करें और अजान के लिए ऐसे आदमी को मुकर्रर करें जिसके अंदर जिम्मेदारी का एहसास हो। मुक्तदियों की रियायत, जैसा कि सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई इमामत करे तो हालात का अंदाज़ा करके
اور नमाजियों का लिहाज करते हुए हल्की नमाज पढ़ाए, इसलिए कि तुम्हारे पीछे कमज़ोर भी होंगे और बीमार और बूढ़े लोग भी। हाँ, अलबत्ता जब तुम में से कोई अपनी इनफरादी नमाज पढ़े तो जितनी लंबी नमाज पढ़नी चाहे पढ़े। हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है कि एक आदमी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आया। उसने कहा, फिला इमाम फजर की नमाज लंबी पढ़ाता है, इसकी वजह से सुबह की नमाज बाजमात में मैं देर से पहुंचता हूं। अबू मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मैंने किसी वाज व तकरीर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना गुस्सा करते नहीं देखा जितना उस दिन की तकरीर में देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम में से बाज इमामत करने वाले अल्लाह के बंदों को अल्लाह की इबादत से बितकाते और मुतनफ़िर करते हैं। खबरदार, तुम में से जो भी इमामत करे इख्तिसार से काम ले, क्योंकि इसके पीछे बूढ़े भी होंगे, बच्चे भी और काम काज पर निकलने वाले ज़रूरतमंद भी। बहरहाल, इख्तिसार से काम लेने का मतलब ये नहीं कि उल्टी सीधी जल्दी जल्दी नमाज पढ़ा दी जाए और 4 रकात नमाज 1.5 मिनट में उड़ा दी जाए। ऐसी नमाज इस्लाम की नमाज नहीं। अलबत्ता नमाजियों का और वक्त व हालात का ज़रूरी हद तक लिहाज किया जाना चाहिए। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मुआज़ बिन जबल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद नबवी में नफल की नीयत से नमाज पढ़ते, फिर जाकर अपनी कौम की इमामत करते। तो उन्होंने एक रात इशा की नमाज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ी और फिर जाकर इमामत की और सूरह बकरा शुरू की। तो एक आदमी ने सलाम फेर दिया और अलग अपनी नमाज पढ़कर घर को चला गया। दूसरे नमाजियों ने नमाज पढ़ने के बाद उससे कहा, तूने नफाक का काम किया। उसने कहा, नहीं, मैंने मुनाफिकाना हरकत नहीं की, बाखुदा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊंगा और मास की लंबी नमाज का किस्सा बयान करूंगा। चुनाचा उसने आकर कहा, ए अल्लाह के रसूल, हम आपाशी के ऊँट रखते हैं, उजरत पर लोगों के बागात और खेतों की सिंचाई का काम करते हैं, दिन भर अपने काम में लगे रहते हैं, और मास का हाल ये है कि इशा की नमाज आपके साथ पढ़कर गए और सूरह बकर शुरू कर दी। हम दिन भर के तके हुए हैं, कैसे इतनी देर तक खड़े रह सकते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर मास की तरफ मतवज्जा हुए और फरमाया, ए मास, क्या तुम लोगों को फितने में डालते हो? वश्शम्सि वज़्ज़ुहाहा पढ़ा करो, वल्लैलि इज़ा यग़शाहा पढ़ा करो, सब्बि इस्म रब्बिकल आला पढ़ा करो। और ये था नमाज के हवाले से एक मुख्तसर सा बयान।